These are the advantages and disadvantages of computer. Okay, let me start the class. At first, what we need? What is the first chapter name? What is your computer starting point? Computer basic. What is the basic? That is IPO. What? You know about IPO? What is IPO system? Yes. What do you mean by IPO system? This is IPO. Write your own note. What is IPO? IPO stands for input. P stands for processing and O stands for output. Okay? So, what is IPO? This is a system of input, processing and what we input, हम लोग input क्या करते हैं? इनपुट करते हैं डाटा और हमारा प्रोसेसिंग क्या होता है? डाटा का प्रोसेसिंग होता है. ओके, तो प्रोसेसिंग का क्या सिस्टम है? दैट इज इन 0 and 1 दो ही यूनिट में प्रोसेसिंग होता है, राइट? और आउटपुट क्या निकलता है? डिस्प्ले. डिस्प्ले का होता है मॉनिटर पर, है ना? साउंड का कहां पे होगा? साउंड का स्पीकर पे, राइट? सो दिस इज मॉनिटर. द प्रोसेसिंग बाइनरी सिस्टम इज 0 and 1 and we get input, that is data. When we feed the data, it processed and then gets answer. We can know all the utilities, all the type of, all the functions of need, use, basic, explorers, and all we get data. Right now, write this thing. Okay, so we will get the data. So what is data? Data is input, processing, output. Okay? Yes. You have to get the input, that is words, symbols or numbers we enter. What is data? Number, symbol and alphabetical symbols. Okay? Words, what we feed in, ये सब हम लोग इसमें डालते हैं डाटा में. That is input. So what is input? Yes. The words, numbers or symbols entered in a computer are called data. Yes. A word, number, symbol which is entered in computer is called data. देखिए, copy first page. Where is the book? Keep out of your book. Where is the book? Yes. Write this one. Computer is a smart machine. The words, numbers or symbols entered in the computer are called data. Yes. So make it. Now we find the advantage.
ये processing. So what is the advantage of computer? Advantage of computer. Yes. What are the advantages of computer? कंप्यूटर का एडवांटेज क्या है, उससे क्या फायदा? दैट इज एक्यूरेट. ओके, वी गेट स्पीड टू वर्क. तो फर्स्ट इज स्पीड, दूसरा इज एक्यूरेट, नंबर 3 इज वर्सेटाइल, वर्सिलिटी, नंबर 4 diligence, storage, high storage, diligence means वो ईमानदारी से एकजुट होकर के कंप्यूटर कभी थकता नहीं है ना, एंड मल्टीटास्किंग है ना. diligence means 24/7, never tired है ना. ये कभी थकता नहीं, कंप्यूटर काम करते रहेगा तुम्हारे लिए 24 घंटा. और सबसे ज्यादा क्या है, दिस इज ए मल्टीटास्किंग सिस्टम. मल्टीटास्किंग. सो व्हाट इज मल्टीटास्किंग? यस, व्हाट डू मीन बाय मल्टीटास्किंग? एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर. यस, a computer can perform both audio and visual program at one time. दोनों, ऑडियो गाना भी चल रहा है तो पिक्चर भी चल रहा हो सकता है. और क्या हो सकता है, उधर से कोई चीजों से कोई आ गया वर्ड बीच में है ना, एनिमेशन, हाँ कुछ करके दूसरी जगह फिगर हो गया, कुछ हम लोग बनाए. तो मतलब मल्टीटास्किंग, कट पेस्ट नहीं करना है, तुम्हारा फोटो निकाल कर उसके चेहरा पर लगा दें, like that. So we can do multitasking, means more than 2 or activities within one time period. एक ही समय में 2 या 2 से अधिक काम करना, that is multitasking. Okay? So human, आप सभी लोग मल्टीटास्किंग एक्टिविटी कर सकते हैं. किसके थ्रू? IPO के थ्रू. इसका एडवांटेज क्या है ना, ये सब स्पीड है, एक्यूरेसी है, वर्सिलिटी है, स्टोरेज, डिलीजेंस और मल्टीटास्किंग, ये सब हमारा एडवांटेज है ना. हाई स्पीड से हम काम कर सकते हैं. यहाँ से हमारे SMS किए तो सीधे इंग्लैंड में चला गया, लाइक दैट है ना, स्पीड. ओके, सो वी आर ऑल, दिस इज द बेसिक थिंग, IPO. ओके, हेलो, लिखे आप, हो रहा है मल्टीटास्किंग, एंड वी विल फोकस ऑन मल्टीटास्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. ओके, now this is input and output. All type of computers are found in input, means जो भी डाटा हम दे रहे हैं, that is called software and hardware. Software and hardware. So what is hardware and what is software? जो IPO को चलाता है वो सॉफ्टवेयर है, और जिससे IPO चलता है वो हार्डवेयर है. फिजिकल पार्ट इज हार्डवेयर, नॉन फिजिकल पार्ट इज सॉफ्टवेयर. डू यू अंडरस्टैंड? सो नॉन फिजिकल पार्ट इज सॉफ्टवेयर. लिखिए सब, पार्ट ऑफ कंप्यूटर. हार्डवेयर क्या हो गया यहाँ, ये फिजिकल पार्ट. दिस इज फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर.
Yes. Okay. Huh? बोलो. So you will have to create your own image. ये एक इमेज तुमको क्या बना दिया फिश हो गया. So you can draw or you can intervene such new ideal character or image. Okay, all of you can create some own image. क्या करना है? You have to own image. तो ओन इमेज तुमको कैसा बनाना है? तो बनाना कैसा मतलब तुमको क्या बनना है? हेलो, क्या बनना है? अभी आपको पढ़ लिख कर क्या बनना है? बोलिए. डॉक्टर और कलेक्टर, इंजीनियर और डॉक्टर और चलिए जो भी बनना है, लेकिन उसमें सबसे पहला बेसिक फंडामेंटल क्या है? यूज ऑफ आईपीओ. इसी से आप दुनिया का सब चीज को पढ़ सकते हैं. मैथ भी पढ़ सकते हैं, इससे फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, इससे इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, इससे उर्दू भी पढ़ सकते हैं, इससे फारसी भी पढ़ सकते हैं, है ना? वी कैन टीच ईच एंड एवरीथिंग बाय दिस सिस्टम, by this computer or by this IPO system. So we have to know what is IPO. IPO means input, the data, the information, the knowledge. Okay, you are know or what you will get. Okay, what you need. So that is data. Or processing is all the activities done in the format of 0 and 1. Okay. All the entire global area, all the education, all the system is converted is 0 and 1. Do you know? 0 and 1 is the most powerful digits for global computer system. Okay? So 0 and 1 is the enormous, powerful system. So we can play with this 0 and 1. Okay? How you can write the 15? How we can write the 21 in the format of 0 and 1? ये मालूम? You can write 25 in the format of 0 and 1. That will be next. Okay? I will teach you how this will be proceed. And output is the display system. ओके, डिस्प्ले सिस्टम को देख के समझ जाए कि हाँ भाई ये ऐसा हो रहा है, दैट इज ऐसा 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 लाइक दैट. देखना जरूरी है, बिना देखे तो कोई काम होगा नहीं. तो तुम लिखिए राइट नाउ. तो एट फर्स्ट वी मस्ट नो अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ आवर आईपीओ सिस्टम. एडवांटेज समझ में आ गया? And disadvantage. What are the disadvantages of this system? Okay. Disadvantage में क्या है? तो पहला डिसएडवांटेज है इट हैज नो फीलिंग. ये सोचता नहीं है, कंप्यूटर के पास फीलिंग नहीं है ना? जैसे हम तुमको चोट लगा तो हमको दर्द हुआ, लाइक फीलिंग. कंप्यूटर हैज नो एनी फीलिंग. ओके, बिकॉज कंप्यूटर इज ए मशीन एंड इट हैज नो एनी फीलिंग लाइक ह्यूमन. ओके, नेक्स्ट इज डिपेंड्स ऑन human being. Okay, the computer depends upon
human being. इसको कोई ना कोई आदमी ही चलाएगा. कंप्यूटर कुछ भी होगा, कोई भी सिस्टम होगा तो कोई ना कोई आदमी चलाएगा, ह्यूमन ही चलाएगा. एंड नेक्स्ट इज जीरो IQ. IQ मीन्स इंटेलिजेंस परसेंट, है ना, सोचने का क्षमता नहीं है. बट यस, अरे बेटा थैंक यू. ओके, so it has zero IQ, means it has no any IQ, it cannot make any decision. But till today we can use the, है ना, ये upgrade the zero IQ, depends upon humility and no feeling. In all these advantages are disqualified in the 5th generation. 5th जनरेशन में ये सब खत्म हो गया. ये 4th जनरेशन तक ये था. अब कंप्यूटर सोचने भी लगा लाइक दैट. ओके, तो कंप्यूटर सोच के आपका चीज को बना देगा. आपको कंप्यूटर सबको सीखना है, बढ़िया से मास्टर बनना है. यस, आप यहाँ सारे क्वेश्चन तो याद कर लिए. कल हम लोग परसों में चलेंगे कंप्यूटर सिस्टम, लेकिन कॉपी आपका कंप्लीट हमको चाहिएगा. कल कॉपी कंप्लीट कीजिए और इसके बाद जीके. ओके, so all of we complete the chapter number 1 and 2 is for memory. Okay, chapter number 2 is of memory device. We all have a device, IPO device. The device is also IPO with input device, output device and processing device. Hello. और इसके बाद डिवाइस आपका मेमोरी डिवाइस. आउटपुट डिवाइस, है ना, प्रोसेसिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस. हेलो, राइट ऑन नीचे लिखते जाओ, बनाओ नीचे लिखते जाओ. डिवाइस कितना तरह का डिवाइस होता है? 1 2 3 4 तुम सीधा लाइन से लिखो ना. डिजाइन क्या बना रहे हो? डिजाइन बनाओ तो तुम याद करो. ठीक है, बढ़िया से सब नोट करो. ओके, so we all can use our betterment of our life by the use of IPO. So let me think what is the next use of IPO in our day-to-day life. Okay, write the 10 to 15. Write 10 to 15 tasks of our daily life. ये आपका एक्टिविटी नंबर 1. ठीक है ना? हेलो, लिखो लिखो, हाँ लिखो. अब एक्टिविटी नंबर 2, non-physical part of computer. Non-physical part of computer and physical part of computer. Okay, this is software and hardware. Okay, thanks. Now you all write the notebook and learn it.